However, we already have our moderator, Mr. Ashok Meenawala, past chairman GJC. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Come on. I'll now like to invite on stage our vice chairman GJC, Mr. Avinash Gupta. Also requesting Mr. Abhishek Gupta, Mamraj Musaddilal Jewellers, Mr. Ashish Pete, past chairman GJC. Mr. Neil Pete, Vamanhari Pete Jewellers, requesting Mr. Sumit Anand and Mr. Vedant Anand, Punjabi Saraf, to please join us on the stage. Also requesting, ladies and gentlemen, taaliyan continuous honi chahiye. The dignitaries are joining us for a great panel. Requesting Mr. Ashish Kothari and Mr. Abhishek Kothari, Kothari Jewellers Private Limited. We have the strongest panel of all, ladies and gentlemen, right here on the stage. तो शुरुआत करते हैं. Ashok sir, over to you. Good morning and welcome. Good morning. I think I'll speak from there first, then I'll come over there. So this is the second seminar today. And we're going to talk about the big retail transformation that is happening in the jewelry business today. So if you really look at the situation today, the biggest change that is happening with the retailers is that the new generation is joining the business, and it's sometimes it becomes a little difficult in businesses to accommodate that new generation with the mindset that the old generation has. And there is a change of thought, there is a new fresh mind of a youngster who comes into an organization which has got a history or a legacy of probably 5, 10, 20, 100 years. And he wants to bring about new ideas, he wants to bring about new things in the business, and sometimes the families are so adaptable that they straight away say, fine, whatever you want to do, I am ready to help you. And some businesses see that big change happening and benefit from it, and some businesses are not in a situation to adapt to that whole situation. So एक हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है फैमिली बिजनेसेस के अंदर कि नया जनरेशन जब अपना आता है तो क्या करना चाहिए. तो मैं शुरू करूँगा. आई थिंक मैं खड़े होकर यहीं से बात करूँ तो चलेगा भैया? आपको कैमरा वाला चलेगा? ये मेरे को खड़े रहने में प्रॉब्लम अब कम हो रहा है. सॉरी. सो अपन पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं. मैं सारे पॉइंट्स अगर मैं लूँगा तो मेरे अपने को सारा दिन लग जाएगा. So we'll look at a very few limited points that we will focus on and try to find the most essential part. अभी एक सेमिनार हमारे पहले गया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सेमिनार था, और ये एक सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि हर वक्त जो भी चर्चा होती है उसमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये करना चाहिए. तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के बिजनेसेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह आपने बनाई है. आर यू एक्चुअली यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर बिजनेस? आई वांट टू स्टार्ट विथ आशीष भाई, इफ यू कैन. आई वांटेड टू आस्क नील बट आई सेड आई विल रादर आस्क यू. अविनाश भाई ने स्मूथली स्लिप में ऐसा बॉल मेरे पास डाल दिया. Yes, artificial intelligence. Thank you Ashok भाई for having us in the panel. So ये पैनल में हम बोलने से ज़्यादा आपसे ज़्यादा सीखना चाहेंगे. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं. It will be very useful for our industry. So internally there have been discussions कि कैसे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन
my understanding is for the industry, because artificial intelligence will work well only if you have good amount of clean data. जब तक डेटा आपके पास अच्छा नहीं है, and our industry is the weakest in terms of data. So I think it'll take 6 months, 1 year for to have sane data. Designs में भी design capture करके data, and the bigger the company, it gets even more difficult. So we are in that process of cleaning up the data, getting the data ready for applying AI on top of it. Otherwise अभी तो it's like Google and वैसे लोग use करते हैं, but to genuinely use AI for predictive analysis, for design automation, उसके लिए I think at least our company is about 6 months to 1 year away, but the process has started. Neil, if you want to add something. Sumit, same situation, same question to you. What are you actually doing with AI in the present situation? Have you started adapting to it, and to what extent? So, जो ये कर रहा है मैं उसको ये दे दूं आंसर? Yeah, fair enough. So, like Pete uncle just said, so a lot of people are, including us, are on a pivotal stage, but we've realized that AI can, save a lot of time. So recently we met a guy, a company called Zoot. So they basically minimize the trouble and friction that one has to do with regard to model shoots and all of that. So we recently thought about making a cataloging system which has real model-like image or real model-like videos along with the jewelry, which is simply shot by DSLR. So such sort of stuff is something which is immediately implementable. So sometimes it's really funny, but we just were in talks like what to do different this Diwali for a campaign, and then we simply, while having discussions with very monotonous ideas, way discount and all of that. So we bounced the same question to ChatGPT and the results were tremendous. So I think it's a huge like a gap with regard to implementation, but there are a lot of things that makes your brainstorming process faster or streamlined. So advertising or marketing is one area that you have started trying to use it. Yeah. And you started implementing it? So to an extent, I mean 15-20% of what information we get, because it's really hard to make a call just like that. Okay. But yeah, we're still trying. Are there any other areas you use artificial intelligence? So sometimes in CRM, but we are still trying to make it a little more perfect with regard to personal relations and all of that. But yeah, slightly. What do you think is the key issue in problem in CRM that does not fit so fast? Or so I think once all of the organizations in a lot of system driven processes, so a lot of human touch which gets missed with regard to customer relationship management. So the kind of relation which the name suggests, it gets eliminated when it's more system or AI driven, which can only be done thoroughly by human interaction. एक और बात बताइए, आपके you are a young guy, absolutely dynamic, and in working with your dad, तो problem देता है वो? नहीं, बहुत अच्छा लगता है. Cooperate करते हैं आपसे? Yeah, I just love him. So sometimes it's get. So when we were speaking, like when we go on exhibitions together, I feel that पापा मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, because आपके साथ अगर 100 मीटर दूर जाना है तो आधा घंटा लगता है, because हर कोई. So but that happens to be a lot of learning, a lot of inputs and insight, but he's actually pushed me a lot without even asking me to do something. So I'm really grateful to have somebody like him. में जुड़ जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम सबको फेस करने पड़ते हैं बॉस. ये प्रॉब्लम है. वो उनका शो जो है, वो जो 3 दिन का शो है ना, उनको कम से कम 6-8 दिन चाहिए हकीकत में, क्योंकि वो एक बूथ के अंदर में से दूसरे बूथ में जाते हैं, वहीं पे उनका समय निकल जाता है बहुत. बट थैंक्स अ लॉट फॉर इट. आशीष जी, जबलपुर से हैं आप, बताइए सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप तो यूज़ करते ही होंगे. Thank you, Ashok ji, for calling us in this beautiful session. AI
We are in search actually, matlab from last few months, I put up my team and myself prompt banana, matlab we are in that process ki what prompts we should give so that our matlab we can find our AAA plus customer as we heard in last session, or double B customer, so that we can take care accordingly. That designing photo shoot not yet, but we saw a few days back that wonders can happen. We are all in process. We have kept the team up now. I have hired few persons. They are looking into that AI thing, but not yet. I think it may take few months as a single store also. It may take few months, but I'm definitely sure for everything AI has a solution for our retail jewelry. What I've learned from last few days being in IIM Ahmedabad, there was a session for AI also, and we are pretty much confident. वहाँ से भी कोई solution नहीं मिला? Solution तो बहुत सारे मिल गए हैं, implementation की बात है. So we were continuous in process from last 10-15 days. तो ये problem लगता है आपको आपका ही है या सबका यही situation लग रहा है? क्लीन डाटा तो किसी के पास नहीं है, जैसा बात हुई कि सो वी आर ऑल्सो क्लीनिंग अप. द मेन इशू इज, एज वन ऑफ आवर गेस्ट आस्क्ड, कि वी डोंट हैव द प्रॉपर नेम्स, नंबर्स एंड द डिटेल्स. कस्टमर बिलिंग, हाँ, बिलिंग के टाइम पे द कस्टमर्स जनरली डोंट गिव द डाटा, बट now we have incentivized our staff to take the data properly. If we incentivize them, they will come up with the data, and very fast we'll be in that process. अविनाश जी, सर आप इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं? Sir, I will be very honest. I was skeptical till I went to IIM for AI. And after going to IIM, the clarity has come that AI is going to be there and it will be good for our trade also. So definitely I will start that process now, because I have not tried or I have not touched also. Even everyone has used ChatGPT. I didn't use ChatGPT also till date. So I won't lie. So it is a real picture of mine. अभिषेक जी, आप यू आर द यंगर पार्ट ऑफ द कंपनी, एंड आपके हिसाब से आपको लगता है अभी थोड़ी सी इसमें स्पीड बढ़ानी चाहिए? Certainly इसके बारे में we had a discussion after coming, because even my younger brothers मयूर एंड निशान went to IIM course. उन्होंने भी आने के बाद ये डिस्कशन किया कि certainly भैया अपन जो काम कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम 5 जन घर के हैं, तो हमको टेक्नोलॉजी की या कोई आउटसाइड फोर्स की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ती, कि वी हैव डिपार्टमेंटल वाइज काम कर रहे हैं. लेकिन अभी मैं नील भाई से भी बात कर रहा था, वी आर ऑन द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन अगर करेंगे और एक जन को 5 रोल करना है तो करेंगे कैसे? तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी AI माइट हेल्प एंड इट विल हेल्प. मतलब माइट हेल्प का तो अब क्वेश्चन चला गया, नाउ इट हैज़ अराइव्ड, इट इज़ द टाइम कि वी अडॉप्ट इट. तो अभी आपको थोड़ा जवाबदारी लेना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि अविनाश जी जो बिज़ी ज़्यादा हो जाने वाले हैं इस साल में. और 2 साल के, आपको 4 साल तक तो आपको उनको ज़्यादा नहीं परेशान कर सकेंगे. सर्टेनली. तो हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको उनको समय देना पड़ेगा. So I think we'll go to the next topic basically, and the next one is that there are 2 basic elements in our business. एक होता है वैल्यू और दूसरा होता है वॉल्यूम. एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए टर्नओवर की बहुत इम्पोर्टेंस है, कि हायर टर्नओवर जितना हो सके उतना आदमी का बिजनेस बढ़ सकता है. लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक अनदर बिग चैप्टर है, कि प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर के साथ जुड़ा हुआ है या प्रॉफिटेबिलिटी एक यूनिक सब्जेक्ट है जो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है. ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी सारे बिजनेसेस, अपने ही बिजनेस के अंदर इतने सारे बिजनेसेस हो रहे हैं, और हर एक नई प्रोडक्ट जो बन रही है, नया चेंज आ रहा है, वो अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को
बढ़ाने की उम्मीद देता है, तो आप किस जगह पर उसका वज़न ज़्यादा देते हैं? आशीष जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ यू. What do you think we should focus on profitability compared to the volume? I think there is no clear-cut yes and no in this. As a businessman, you have to be fleet-footed and respond to the developing situation. क्योंकि every time you are not working in a vacuum, so there is always a competition. Competition is playing different, tactics and games. So we have to accordingly adapt. Sometimes you have to let go of profitability to achieve the scale with a long-term view in mind. तो हम लोग भी कंपनी में we try and balance both. Sometimes when the rates are going up and down, that time you have to sacrifice the margins to get the volumes, because your fixed costs are always going to be there, and many times to tide through the difficult situations you have to focus only on the top line, and bottom line comes in. But as you said that there are different products have a different profitability ratios, और उसका right balance आना important है. So any company would like to increase the share of business of products which have higher margins. Like earlier it used to be only diamonds and color stones which used to be. Now lab grown is a new best margin product that is available. So people are trying to balance these. Gold jewelry itself has so many different products that you cannot imagine. Absolutely. In gold only, if you look at even plain gold jewelry, I think the definition of plain gold jewelry, I don't know. You can get an item at one wastage, you can get an item at 15 wastage also. So what many I times think the people, potential is huge. people don't realize, because there are some items which are giving you very high stock turns. Yeah. So there you can sacrifice a little profit margins, but at the end of the year you can squeeze the best out of that product, or the amount of money that you are investing it. So it's not a clear cut yes and no answer. It has to be measured as per your business model and managed accordingly. So one has to master this whole concept in his business. I think business management is doing this only. So Neil, what is your opinion on this, on the as a younger generation? Yeah, I totally agree to what he's saying. Just the case is that, like you said, we are not living in a vacuum. We understand what is happening around us, and the major aspect of this is that you have to be proactive and not reactive to what is happening around in the market. So that is where you get your more margins out, or maybe get a turnover around when you need कि अभी ये निकालना है, funds free करने हैं, तो ये करो. So that is how you should be. So just for everyone, Neil is his grandson, huh? आशीष भाई के grandson है, और अभिषेक जो है वो भतीजा है अविनाश जी का, और आनंद जो है वेदांत जो है वो इनका बेटा है, और वो भी बेटा ही है. अभिषेक जो है वो आशीष जी के ब्रदर है. वो भी बेटा जैसा ही है. तो पता नहीं चलता है, तो आप लोग को क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आप लोग ऐसा मत समझना आशीष जी यंग ही है अभी भी. आपने मुझे ओल्ड बना दिया है. See, you have the family traits. Yeah, Yes, he sir. has the origins. So interesting है. So फैमिली बिजनेस में नेव्यू चाचा साथ में है, ग्रैंडसन साथ में है, फादर सन है. सो हर एक का फैमिली बिजनेस में, जॉइंट फैमिली में, इट्स अ डिफरेंट कितना बड़ा रोल है ये, ईच एंड एवरी पर्सन. कितना इम्पोर्टेंस होता है. एब्सोल्युटली. How do you think nephews and sons and daughters and the family which is attached to you, working with you together, राइट. उसमें जो बर्तन में आवाज आएंगे और म्यूजिक जो इससे उत्पन्न होगा, उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? अभी 4 बर्तन साथ में आएंगे तो आवाज़ तो आएगा ही. हाँ. वो रिलेटेड है कि नहीं, आवाज़ आने वाला है. हाँ.
उसको सुर में बदली करना हाँ, है। इंडिपेंडेंट पीपल वर्किंग टुगेदर विल ऑल्सो हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ जॉइंट फैमिली इट बिकम्स म्यूजिक, बिकॉज यू नो एक दूसरा बर्तन। एक्सेलेंटली सेड। तो आप समझ सकते हैं इसका कभी सुर कम लग गया तो मैं एडजस्ट करके मेरा सुर बढ़ा देता हूँ, कभी वैसे वर्षा होता है, क्योंकि बिकॉज द फोकस इज वी, हम लोग साथ में हैं एज अ फैमिली, तो उस पर फोकस है, इसलिए जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है या जो म्यूज़िक बजता है Fantastic. तो उससे राइट साउंड आ सकता है। सुमित जी आप क्या कहना चाहते हैं सर? आशीष कुछ The only point to add to Ashish bhai is, हाँ जी, in a family business, when me becomes we, the family business becomes successful. me becomes we. Yeah. Fantastic, very well said, very well said. सुमित जी सो मेरे हिसाब से ना जिस भी फैमिली बिजनेस में अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक है और सबको पता है कि मेरा क्या रोल है और वो रोल के ऊपर वो इंडिविजुअली अपनी डिलीवरी पे काम करता है, सो रेयरली कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई इश्यूज आते हैं और वो कंपनी हमेशा ग्रो करती है। सो जब भी वो मी होने लगता है ना तो सब चीजें खराब होने लगती हैं एक्चुअली। तो ये वी वाला जो है वो दैट इज द बेस्ट। देखिए फैमिली बिजनेस अगर हमें करना है तो वी के बिना कोई और चारा नहीं है। चारा नहीं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इफ यू रियली वांट टू स्टे इन अ फैमिली बिजनेस, वो वी ही रहेगा। So I have stayed in my family business for very, very long time, and I know, and all of you, all the fathers over here also are very good friends of mine. So I know each and one of you exactly आपके mindset. You are all fantastic people, cool-headed guys, absolutely. और आपके बच्चे, brothers, nephews वगैरह जो है वो आपको हर तरह से सहानुभूति देते हैं। आप बताइए बोलिए। So, for me, my brother, because my son and my nephew वो कुछ अपना brand develop कर रहे हैं, so he is with me. ये मेरे 10 साल बाद मेरे business को join किया, and without asking him, I took the post in GJC. I'm out for 20 days, and he knew कि भैया तो ऐसे रहने वाले हैं, अभी बाहर रहने वाले हैं, तो अपने आप वो जवाबदारी हाथ में ले लेना, बिकॉज इट्स वी, जैसा अविनाश जी ने कहा। सो वी ऑल्सो हैव अ जॉइंट फैमिली ऑफ 3 brothers, माई फादर एंड 3 brothers, और अपनी अपनी ड्यूटी सब दे रहे हैं, बट अगर उसमें कोई एक जन नहीं है उस जॉब में तो दूसरे को पता है कि हाउ टू डू दैट जॉब ऑफ माई एल्डर ब्रदर, एंड दैट्स हाउ इट रन्स, द फैमिली रन्स। Okay, so I think we'll go to the next point of discussion, and that is inventory. I think without inventory our businesses are nothing. And जी Before we move on to the next topic, मुझे एक बात कहनी थी बोलिए कि when you are working in a group of people who are related or a joint family, I think one principle that we have as a family accepted, and that has worked wonders, is you have to focus on positives of others and ignore the negatives. जनरली क्या होता है, किसी का एक नेगेटिव मुझे पसंद नहीं आया, आई कीप फोकसिंग ऑन दैट, वो बड़ा बड़ा होते जाता है। लाइक इफ़ यू एक वॉल पे एक डॉट डालो, उसके फोकस करो तो डॉट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। सो इफ़ यू फोकस ऑन नेगेटिव्स ऑफ अदर्स, वही दिखता है। सो फॉरगेट एंड फोकस ऑन पॉजिटिव्स, वो क्रिश्चियनडो में सबका पॉजिटिव हो सकता है। दैट हैज़ बीन आवर पॉलिसी, वर्किंग विद टुगेदर। बट आशीष भाई वो तो रूल नहीं है ना आपके यहाँ पर, ग्रैंडफादर एंड फादर इज ऑलवेज राइट। नहीं अभी आपने मुझे एज अ सीनियर ऑफ द फैमिली बोला है, एब्सोल्युटली, बट 30 years बैक व्हेन आई जॉइंड, आई वाज द जूनियर, आई वाज इन हिज शूज, और तब भी मुझे लगता था कि मेरे सीनियर्स गलत कर रहे हैं, बट एट दैट टाइम जूनियर्स को भी दे हैव टू अंडरस्टैंड, जो सीनियर बोल रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, सो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के एक्सेप्ट करके जी बेस्ट दोनों में से निकाल के, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव, वो लेके आगे बढ़ना, जो मैंने 30 साल पहले किया, या हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी वही कर रहा है। जी अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? Can I add something? या प्लीज। So, like he said, जो नई जनरेशन है वो आती है और उनको लगता है कि मे बी द एल्डर्स आर डूइंग रॉन्ग, और वो हमारी सुनते नहीं है। सो आई वेंट थ्रू द सेम फेज, लाइक ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू दैट।
during his time. So I thought ki why should they listen to me? What have I done that they will listen to me? What do I bring to the table? So after that I started processing ki why will they value my opinion? Something I will have to prove something, I will have to do something, and then I will have to show results, and then they will maybe value my opinion. Boss, salute you. I tried doing that, and Salute you. Fantastic clarity of mind. And this is exactly what it should be. Just want to compliment Ashish bhai. He has given me something which I learned today. Oh, wonderful. So we'll come to the next point, and that is inventory. इन्वेंटरी जो है वही दुकान में जो स्टॉक पड़ा है, अपने पास सामान पड़ा है, उसी के ऊपर हर चीज़ निर्भर है. और इन्वेंटरी को यही चीज़ बिकती है रोज़ के रोज़, और यही चीज़ हमको बढ़ानी पड़ती है रोज़ के रोज़. तो कुछ सवाल इसमें से शुरू होते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको कौन सा सामान खरीदने की ज़रूरत है? What makes you decide what you want to buy? A very simple question. प्रोडक्ट अच्छा दिखता है कि you need it, और वो डिसीजन किस तरह से होता है टेक्निकल एलिमेंट में? सोहित जी. हमारे पास तो पूरा सिस्टम है जिससे हमने एक हमारा बेसिक IMS जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का वो मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड किया हुआ है. थोड़ा क्लैरिफाई करिए. फॉर इंस्टेंस जैसे एक रिंग सेगमेंट है, सो रिंग में समझिए एंटीक की रिंग्स, सो वो डिसाइडेड है कि वो हर वेट रेंज में कितनी होनी चाहिए, वो पहले से डिसाइडेड है. और उसके बाद वो कितनी अभी है, सो बची हुई हमें हमेशा रेप्लेनिश करते जानी है. सिस्टम में डाला हुआ है. हाँ, ये और आप तय नहीं करते ये? नहीं, हम नहीं करते थे. सो वो सिस्टम से ही किया है कि लास्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर के डेटा से निकाल के वो डिसाइड किया हुआ है कि इतनी रिंग्स मिनिमम रिक्वायर्ड है. सो उसके हिसाब से वो आ जाता है. और एक बहुत अच्छा सिस्टम है OWS, ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड. ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड. सो विद इन 30 to 60 डेज जितना सामान जो बिकता है, एक्चुअली 0 to 60 डेज, सो वो विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड वो रिपीट होता रहता है. सो ज्यादातर वो चीजें फिर से बन जाती हैं, तो वो रिप्लेनिशमेंट का गैप भी कम हो जाता है. बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में, पता नहीं इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी ने इस पे कभी काम नहीं किया. हमारी इंडस्ट्री में मर्चेंडाइजर्स अगर हमें हायर करने होते हैं तो वो टैलेंट है ही नहीं कहीं पे भी. मतलब जितने भी हैं वो या तो कॉर्पोरेट्स ने हायर किए हुए हैं या वहीं ट्रेन होके वो लोग उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं. सो प्रोफेशनल मर्चेंडाइजर्स की बहुत ज़्यादा कमी है. अगर वो हो ना तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस बन जाए. आप मर्चेंडाइजर जब बोलते हो तो उसका रोल क्या होता है मर्चेंडाइजर का? ये जो अभी ये सिस्टम बनने के बाद इसको जो इम्प्लीमेंट करना है उसका काम मर्चेंडाइजर बहुत अच्छा कर सकता है. जो स्टॉक रिप्लेनिश करना है, प्लान करना है, डेड स्टॉक नहीं रुकना चाहिए भाई. 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज के अंदर अंदर वो स्टॉक खत्म हो जाना चाहिए. उसको प्लान करना, रिटर्न करना, एक्सचेंज करना, या उसको सेल पे लगाना, या वो शेल्फ पे ठीक जगह पे लगा है कि नहीं, वो क्यों नहीं बिक रहा, उसको रिसर्च करना, ये सब मर्चेंडाइजर का काम होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली टैलेंट है नहीं इंडस्ट्री में. मतलब हम पिछले 1-2 सालों से इसके लिए बहुत परेशान. who know this very well. So don't you train people and build them up? जब आप ट्रेन बहुत अच्छा करते हो तो वो सबसे जल्दी भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने किसी को 20-30 में रखा, उसको 40-50 भी कर दिया आपने. उसको पता है मैं किसी भी चेन स्टोर पे अब जाऊंगा तो मुझे लाख रुपए भी मिल सकता है. So this is a big issue that people get picked up very fast when you have built them up. Yes. और कौन सी कैटेगरी में, कौन से सीजन में कब काम करना है, ये अभी हम कॉल लेते हैं, बट मर्चेंडाइजर कैन डू वंडर्स टू इट. आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें हेल्प कर सकता है? कर सकता है, बट इसमें बहुत सारा मैनुअल इंटरवेंशन है. इतना आसान नहीं कि सब कुछ AI कर देगा, नहीं कर सकता. अभी तो नहीं कर सकता. ट्राई नहीं किया आप कह सकते हो? नहीं, अभी वो सिस्टम का वो लेवल पे जाने में अभी टाइम लगेगा. हो सकता है सब होगा. मेरे को कोई बोलता है कि ये गोल्ड के बारे में चल रहा है कि ये नकली, ये लैब ग्रोन गोल्ड आएगा क्या, मैं कहता हूँ 101% आएगा. सब कुछ होगा एक दिन, आप मैं भी बन जाएंगे. वो क्यों नहीं होगा? मतलब सब कुछ इवॉल्व होने ही वाला है. हमने कहाँ सोचा था जो आज होता है. सो सब कुछ होगा, बट इट विल टेक सम टाइम. तो उस बीच में तो मैनुअल लोग चाहिए ना. करेक्ट. आशीष जी क्या कह रहे हैं आप? So there's a lot of difference between myself and my brother for inventory management.
मैं तो सिर्फ जहाँ जाता हूँ स्टोर, आई यूज टू परचेज व्हाट आई लाइक, What बट you ही इज वेरी मच पर्टिकुलर. जो बिकता है वही स्टॉक में आना चाहिए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट. एंड वी हैव ऑल आर मतलब वी हैव एवरीथिंग इन आवर सिस्टम, इन आवर ERP. सो ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग. ही सेड कि पहले वो आएगा जो ज़्यादा बिकता है, पहले वो नहीं आएगा जो आपको पसंद है. सो द सिस्टम गोज दैट वे. And it has helped us a lot, and especially after COVID we have changed a lot. हमारे को जैसा सुमित ने बताया कि कितना स्टॉक एट अ टाइम, चाहे वो रिंग में हो या जिसकी चर्निंग ज़्यादा है, जिसका टर्न अराउंड ज़्यादा है, वो हमको पहले ध्यान देना है. जिसका टर्न अराउंड कम है, एंड वी टेक केयर. एंड वी आर वेरी लकी. हमारे पास अभी 5 साल से डेड स्टॉक ना के बराबर है. एंड थैंक्स टू अभिषेक, क्योंकि वो बहुत इस सब चीज़ों को बहुत ध्यान देता है. बिल्कुल डेड स्टॉक नहीं है, एंड बहुत अच्छी चर्निंग हो जाती है. बिकॉज वी टेक, ही लुक्स आफ्टर दैट कि जो पहले बिकता है वो पहले आना चाहिए. उसके बाद आपके पास एक्सेसिव फंड है तो आप पोल्की सोचना या ब्राइडल सेट सोचना. दैट वे ही थिंक्स. दैट्स अ गैप. Fantastic. Just to add to Yeah, that, yeah, sir. please. Like you had asked about inventory. So there are also tools which are available with the help of AI. So कुछ inventory में आपको some list you have to put in how much stock turns are you expecting, what is the minimum, what is the maximum. So you put that in and they give you an output for that. They also give you a Can you buying just cycle. elaborate what are those? But there is one with theory of constraints. I think so. They're using that principle and maybe Theory of constraints. they are using that and they are Okay. putting that up. And also you can, if you apply your mind, you can do it yourself also. Okay. It's like a minimum or maximum you put ki, what is your poor performing product, what is your good performing product, what is your baseline. So uske niche wala hai. So you do it on Excel? Yeah, you can do that on Excel. We have been doing that. We have been trying a lot of things, and so it's giving You wonderful follow results for ERP us. at your place? Pardon? You follow Yes. ERP at your Yes, we have an ERP. We had an homegrown ERP. We have now changed to a different system. So Okay. a lot of Fantastic. AI usage with this, Yeah, yeah. and so like he said, we are data. Has clean anybody करके we are connected using that. ERP to AI? Pardon? Anybody connected ERP to AI? We haven't connected it, but there are means and medians to do that in the current system Because also. which ERP we are in doing. itself is so Vast. It is very and vast. integrated. So, yeah, and you if just you open have a vast ocean Yeah. of information and data available, and if there is an intelligent guy who goes inside, and which is the most biggest requirement, कि उसमें से खुदाई करके जितना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उतना निकाल सकते डेटा तो मिल जाएगा, फिर आपके ERP का आपको API ओपन करके वो सिस्टम से इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड यू विल बी देयर. अविनाश जी कुछ इसके बारे में बताइए. Might be that fear is there to ERP को AI के साथ करके. Are we sharing the data to a big world? That's a fear actually. फियर Data share कंप्यूटर होगा. में ही हो रहा है ना. AI तो आगे भी जा सकता है. मतलब AI का डाटा तो it can be You think there can encrypted be ना a हो. leakage? Yeah, Yeah. that's my. Okay. So Ashok bhai, instinct, as you asked, definitely I am an instinctive guy, and I have always went for my inventory on instincts, and that became my USP in my retail, because that is the curation which we did. And the way you asked volume versus value, that gives sometimes the value but not volume. And ultimately at the end of the day, what is your game? Your bottom line at the end of the day. So every brand has a different way of looking at it. Today, if I look at my B2B, even in my B2B, my biggest advantage or my biggest what I can say is my biggest USP to my customers is what you have in abundance, so we don't need to look at the other part of your inventory. So that way it varies from individual to individual, and definitely it makes a big difference when it comes to retail. Retail balancing is very important, but when it comes to B2B, you are a volume game, so it makes a big difference. So that is what I look at it, and I feel definitely for retail
to run through in the right spirit. Balancing is the most important thing. Value is certainly important, but volumes also give you much higher values. For example, आज आशीष भाई हैं. आशीष भाई, suppose his gross profit margin is say 5%, but his turns are 12 in a year. He is making more money than anybody else. a person who is doing value game. So it varies in what kind of business you are. That is the way you have to look at कि value है या volume है. So that way it will be. So in retail, basically there is a standardization of about 2 to 3 times in a year, and in a wholesale it is almost around I think 10 to 15 times a year. Or Again, I am into both the games. So I am into polki studded jewelry also, and I am into the mass production of gold as well as the ruby emerald jewelry also. If I look at my ruby emerald jewelry turnaround and my plain gold turnaround, it is almost 15 to 16 in a year. times. 15 to 16 times in a year. And when I look at my polki jewelry, and when it comes to my polki jewelry, it's not even one turn. Oh my God. Okay. So I am in both. Okay. And I am enjoying both. Yeah. It is not that I am just trying to convert everything into volume and everything into value. So I am into both the things. So I am enjoying both, and that is the reason I said balancing of volume and value is important. Yeah. But this is mostly B2B, right? Yeah, it is all beauty. All B2B. Yeah, Ashish ji, क्या ना please. आपने क्वेश्चन पूछा था हाउ डू यू मैनेज इन्वेंट्री, तो उसके लिए आई थिंक देयर आर 4-5 पॉइंटर्स दैट आई हैव. वन इज यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर योर बेस्ट मूविंग प्रोडक्ट्स, जैसे सबने कहा. तो उसका एट इज व्हाट वी डू, वी पुट एसक्यू अगर हम देखेंगे हर एक प्रोडक्ट का, समझो हमने लिया एक प्लेन मंगलसूत्र, उसमें 24 इंचेस with a maniwati is one SKU, 26 inches with maniwati is second SKU. So if you can drill down to that level, और वहाँ जाने के बाद if you look at stock turns, so after doing that the best moving items will become your champions. तो उसका as सुमित भाई ने कहा, you have to put a minimum quantity, क्योंकि depending on the your replenishment cycle, अगर प्लेन आइटम है जो आपको 4 दिन में बन सकता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि मेरे काउंटर में एवरी टाइम, बिकॉज हफ्ते में मेरा अगर 5 पीस बिकता है और उसको एक हफ्ते में रिप्लेनिश कर सकता हूँ, तो मेरे पास 5 से 7 पीसेस उसके होने चाहिए. वो सिस्टम में डालने के बाद द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली गिव यू द रिजल्ट कि आपको कितना ऑर्डर कब करना है. जैसे उन्होंने कहा कि वॉट एवर इज सोल्ड इज ऑर्डर्ड, वो दैट इज़ फॉर द फास्ट मूविंग आइटम्स. लेकिन अगर सिर्फ हमने फास्ट मूविंग आइटम्स पे फोकस करके उतना ही माल रखा, तो आपके शोरूम में वैरायटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ, और वो दैट यू हैव टू डिसाइड कि मेरा 80% फास्ट मूविंग होगा, 20% डिज़ाइन वेरिएशन होगा, जो भी है उसके हिसाब से. और ये 2 पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रेकअप ऑफ द इन्वेंट्री मैंने कहा. और व्हाट वी डू इज़, आज मेरा इन्वेंट्री कितना है, ये महीने में मैं कितना माल बेचूंगा, और अगले महीने में मेरा कितना रिक्वायरमेंट है सेल्स प्रेडिक्शन के हिसाब से, और वो कैलकुलेशन करके आज मुझे कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, सो दैट व्हेन द नेक्स्ट मंथ स्टार्ट्स आई गेट दैट इन्वेंट्री. और जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री आता है, अगले महीने मुझे 100 किलो बेचना है, 1 किलो बेचना है, तो उसके हिसाब से अगले 1 तारीख को मेरे पास वो रिक्वायर्ड SKU का माल 1 तारीख को आ जाएगा. So that is how we manage the inventory, but we are yet to integrate the design part of it because it's a very tricky, data heavy solution, और वो मिलना बहुत difficult हो जाएगा. But with AI introduction, I think it will be better managed. सुमित जी, कुछ insights on So जैसे मैंने कहा कि ये सारे प्लान्स के बाद ना, जो अविनाश भाई ने कहा, एक इंस्टिंक्ट भी होती है और बहुत ज़्यादा गो बाय द बुक वाला काम नहीं. सो हमारा जैसे हम बहुत ज़्यादा जेनरिक नहीं करते, सो हम 20% अपना एक टॉलरेंस रखते हैं कि 20% प्रोडक्ट्स जो हैं आउट ऑफ द बुक्स रहेंगे स्टॉक में,
और वो ऑल द टाइम हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं, यू नेवर नो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, बट अपनी गट फीलिंग के ऊपर वी कीप दिस 20% बिकॉज फाइनली योर कैपिटल इज इन्वॉल्व. सो आप उस कैपिटल को कैसे प्लान करना चाहते हो वो हमको प्लान करना पड़ता है. और वो नहीं आएगा अगर तो आपके पास uniqueness of inventory नहीं आएगी. You will get more dead stock at your store and lot of things will happen. और ना ग्रोथ के हिसाब से आपने जैसे पहले कहा था कि मार्जिन्स और ये सारी चीज़ें वॉल्यूम और वैल्यू. सो हमारी जैसी इंडस्ट्री में ना सेगमेंट्स हैं. कॉर्पोरेट बिजनेस हम अगर सारे यही सोच रहे हैं कि हमको कॉर्पोरेट बिजनेस जैसा होना चाहिए या चेन स्टोर्स जितना बढ़िया काम कर रहे हैं हम भी वैसा काम करें. सो ये अपनी इंस्टिंक्ट है कि मुझे वो वाला काम करना है तो फिर मैं अपनी प्लानिंग वैसे करूं. कोई चाहता है कि नहीं मेरा बुटीक स्टाइल रखना है मुझे, या मुझे थोड़ा लोकी ही रहना है. सो अपना मार्जिन उस हिसाब से उस तरह की प्रोडक्ट मिक्स के साथ ही बना जाएगा. तो प्रोडक्ट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आशीष जी क्या कहते हैं आप? सी जैसा सुमित कह रहा है ना कि यू हैव टू एक्चुअली डिसाइड कि वेदर यू हैव टू बी इन द रन ऑफ अ वॉल्यूम और अ वैल्यू, मतलब प्रॉफिट बॉटम लाइन में. बट मेरा बिलीफ ये है कि द कंपटीशन इन द मार्केट राइट नाउ लुकिंग टू द रेट्स, कहीं ना कहीं जब हम वॉल्यूम सेल्स में देखते हैं तो एक वैल्यू में अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब टॉप लाइन के पीछे दौड़ते हैं तो उसमें जो स्पेशलिटी होती है वो पीछे रह जाती है. जो आप चाहते हो कि पर्टिकुलर मुझे प्रॉफिट मेकिंग आइटम्स चाहिए वो पीछे रह जाता है. एंड माई सेल्फ एज बीइंग अ स्टोर एट जबलपुर, हमने मास देखा, वॉल्यूम देखा, टर्नओवर का टॉप लाइन बनाया, बॉटम लाइन व्हाट वी बिलीव कि आगे पीछे आ जाएगा बिकॉज द कंपटीशन इज वेरी मच हाई राइट नाउ सीइंग टू द रेट्स एंड ये. दैट्स माय ओपिनियन. आपको कुछ ऐड करना है या समथिंग इन योर माइंड? So, I mean, it's basically, so I think it's not about the percentage of gross margin or any margin that you do, but it's about the amount that you do. Because we ignore but the fixed cost every year with regard to also gold rates भी बढ़ रहे हैं, but साथ में fixed cost, inflation and all of that, it's also increasing tremendously. So जो difference आप बनाते हो वो भी आपको आगे बढ़ाते जाना है. Otherwise you will be standing there only. So, I mean, with regard to which of the format of business that you want to do, so this is something that I just wanted to say. आप लोग सब organized players हैं. In a way, you have reached a particular stage of life where a lot of things have been practiced and mastered and systems are set in place and all. For an ordinary jeweler, एक ordinary jeweler जो है वो अपना इन्वेंटरी जो है वो बेस्ट में बेस्ट तरीके से इन अ मोस्ट सिस्टमैटिक वे किस तरह से रख सकता है in a retail environment, which is the best way that he should maintain his inventory. अशोक भाई, इन दैट केस मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा. अगर आप छोटे ज्वेलर की या कोई भी, मतलब एक, आई एम नॉट टॉकिंग छोटा ज्वेलर कोई नहीं है आज की डेट में. इफ़ एनी ज्वेलर इज देयर, ही इज़ अ गुड स्केल ज्वेलर, आई से दैट वे. First thing what we need to understand is when we talk about inventory, we have to choose the path. Which path you want to run? Whether you want to run on a volume game or the value game. The moment you decide you are going on the volume game, you have to keep your inventory based on that. And then you don't crib about competition here and there. You just play the game of volume. That's point number one. In case if you want to create your value and you are sticking to your ethics, then you don't need to worry about the competition. Then you are playing only for the value creation. So then inventory management will become like that. So I think that is the path any jeweler has to choose before talking about inventory. This is what I feel. Perfect. आशीष जी, कुछ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव? एडवाइस क्या तुम्हें, यू सेड कि एनी ज्वेलर, तो इफ़ द ज्वेलर इज़ हैंड्स ऑन ज्वेलर, कि वो काउंटर पे रहते हैं एंड ही हैज़ अ मीडियम साइज सेटअप, कि उसको परफेक्टली मालूम है कि व्हाट प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड, कौन सा नहीं बिक रहा है, उसको मालूम है, तो उसको हम कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं. बिकॉज इज हैंड्स ऑन, ही नोज व्हाट हैज़ टू बी बॉट एंड क्या बिक रहा है, क्या मेल्ट करना है, उसको मालूम है.
So unless if you grow beyond that and you are detached from the counter, you are not there full time, then you have to use systems, ERPs, get into the data, get help on the data, क्योंकि not everyone is good in numbers. कई लोग numbers देख के हिल जाते हैं, तो better get people who understand numbers, और जो उसके लिए जो इंटेलिजेंस जो प्रोडक्ट का नॉलेज वो देना आप दे दो, गेट समवन्स हेल्प हु विल हेल्प यू आउट विथ नंबर्स, और वो कर सकते हैं. और छोटा आदमी उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, जो खुद देखता है बिजनेस, ही इज़ द बेस्ट. So we'll come to the one another important point of discussion, which is profitability. So जब तक प्रॉफिट है तब तक सब जिंदा है. The moment profitability reduces beyond a particular point, या profitability stops happening, बिजनेस चल रहा है लेकिन कमाई नहीं दिख रही है, तो वो सिचुएशन के अंदर what are the measures that somebody should take? As a jeweler who we have seen ups and downs happening, सीजन्स भी ऐसे आते हैं, समय भी ऐसा आता है, रेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेते हैं हर चीज़ में. एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आपके पास जगह नहीं होती है कस्टमर को हैंडल करने की दुकान के अंदर, और एक सिचुएशन आता है व्हेन यू डोंट हैव अ सिंगल कस्टमर इन योर शॉप. सो प्रॉफिटेबिलिटी का जो इशू है उसको में व्हाट मेजर्स शुड ए ज्वेलर वेरी रिलीजियसली follow in his shop all the time to maintain or be continuously profitable? I think if I would start, so I think one of the things that goes with regard to every format of business is walk-ins, like you said, कि कभी आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं. So one of the basic steps that anybody can do is do something continuously at the store to make sure that at least there is an input for a desired output. So अगर वो नहीं करके slow है बोलोगे तो वो भी correct नहीं है. Continue to have your customers coming in. Correct. For some reason or the other. Correct. For so some you reason have or the to other. create that situation. Okay. So what do you generally do in So normally any attractive yeah, schemes? so maybe it could be like a collection launch. If somebody is a mass jeweler, there could be a discount or like a short clickbait which might invite the customer or make them curious to come in the store and to learn more about that thing. If not, it's a desired purchase. But still, some or the other activity should happen every year. अभी 40 days तो ऐसे जब कोई भी कुछ नहीं करेगा तो भी हो जाएगा. But other than that, I think there should be a regular practice in every format to make sure that there is no slow momentum. I mean, there could be failure, but still, if there is no input, like I said, so output कैसे desire कर सकते हैं? I think very good insight. ये बहुत जानने जैसी बात है कि स्टोर स्लो हो सकता है बिजनेस के अंदर, बट आप कोई ना कोई प्रमोशंस या एक्टिविटीज़ चालू रखोगे, अपने कस्टमर से कांटेक्ट चालू रखोगे किसी न किसी तरह से, सो वो आते रहेगा किसी न किसी कारण से. अगर एक नया पर्ल का कलेक्शन भी अगर आपको दिखाने की इच्छा है कि ये पर्ल की ज्वेलरी हमने निकाली है, आप जस्ट कम एंड हैव अ लुक एट इट, कस्टमर शायद 4 बैंगल भी ले जा सकता है, वो कुछ और बिग गिफ्ट के लिए ले जा सकता है. यू डोंट नो व्हाट अ कस्टमर कैन बाय. सो फाइंड रीजंस व्हाई you can call a customer to your shop irrespective, and be very excited all the time when a customer walks in, so that they really feel important about the whole thing. Can I? You have any inputs for this, sir? Ashish bhai wants to speak something. आशीष भाई जी बोलिए. अविनाश के लिए भी वो क्वेश्चन था. नहीं मैं तो था ही नहीं मेरे लिए. अरे अविनाश जी इज अ मास्टर. मार्जिन का चिंता ही नहीं है उनका. आई थिंक योर क्वेश्चन वाज कि हाउ डू वी कंट्रोल द मार्जिन्स एंड हाउ डू वी इम्प्रूव द मार्जिन्स. आई थिंक मेक श्योर वी इम्प्रूव द मार्जिन. कंट्रोल तो कहाँ करना है. बहुत बारी क्या होता है, जो हम लोग गाड़ी चलाने में इतना बिजी रहते हैं ना कि बीच में पेट्रोल पंप पे रुक के हवा पानी पेट्रोल भरना भूल जाते हैं. वी आर सो बिजी इन आवर डेली रूटीन कि आज आया माल बेचा, ये आया बेचा, बट वी डोंट रियलाइज हाउ मच मनी वी आर मेकिंग पर प्रोडक्ट
पर डिज़ाइन या पर कैटेगरी, वो हम लोग देखते नहीं. एंड आई बिलीव वॉट एवर यू कैन मेजर यू कैन इम्प्रूव. एंड वी मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट मेजरिंग इट. वापस बोलिए. देयर इज अ रूल दैट वॉट एवर यू कैन मेजर दैट ओनली यू कैन इम्प्रूव. जो नाप सकते हो उसको सुधार सकते हो. उसको सुधार नापेंगे तो ही पता चलेगा कहाँ पे खड़े हैं. वो लोग, हम लोग नहीं करते. दे आर सो बिजी डूइंग बिजनेस कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट में कितना पैसा मिला, क्या हुआ. एंड देन वंस यू मेजर यू विल, द ज्वेलर का इंस्टिंक्ट सबसे बेस्ट रहता है, यू विल इम्प्रूव. On this, one more thing I want to add, Ashok bhai. In general, what happens is we generally fail or we generally miss one thing. That is adding cost of operation in your cost. And if we add that cost of operation, when I say cost of operation, is the administration cost and the advertisement cost and the marketing cost in our costs, that we are not bundling in the cost. And that is where we fail on the margins or the profitability. Because right now what we say, मेरे को 10 वेस्टेज में आया, मैंने 12 वेस्टेज में बेच दिया, मैं 2% कमाया. अरे बाबा, वो 2% कमाने के लिए तेरे पीछे बैक ऑफिस पे कितना प्रेशर है वो हमने कैलकुलेट कभी नहीं किया. सो दैट इज वेयर द बॉटम लाइन्स टेंड टू फेल. एंड ऑलवेज नो व्हाट इज योर ऑपरेशन कॉस्ट. एग्जैक्टली. कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो अपने टर्नओवर के परसेंटेज बेसिस गिनना रखें. 100%. Then only we will be able to manage our bottom line. Otherwise, this bottom line will always fluctuate like this. Very important element for everyone. And basically 5 रुपए का माल 10 रुपए में बेच दिया एग्जाम्पल, तो आपने 5 रुपया नहीं कमाया है. आपके पास अगर 3 रुपए का खर्चा हुआ है तो you actually only made 2 rupees in the whole thing. So you have to make sure that you have to be substantially profitable. आपके पास enough profit रहना चाहिए. Those people who continuously are fighting, प्राइस के अंदर ही लड़ाई करते रहते हैं हमेशा रिटेल के अंदर, उनके लिए ये आया ओपनर है. जो अपने को चैंपियन समझते हैं, I would like to add, sir, लेस लेबर और जीरो लेबर में बेचने के लिए, उनके लिए ये आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट आई ओपनर्स है. डोंट ट्राई टू पुश डाउन योर नेबर एंड बीट योर कॉम्पिटिशन. ट्राई टू सेव योर सेल्फ. बिकॉज आपने अगर पकड़ के रखी है मार्केट, आपने पकड़ के रखा है प्राइस, तो आपका बिजनेस फ्लोट करेगा और फ्लाई करेगा, और फ्लोट करेगा तब फ्लाई करेगा. बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी बोलिए सर. So in my city, in my town, I think so we are मतलब जो हम लोगों के systems हैं, policies हैं, we charge a good amount of making charges, wastage, value addition. But at times when we want our customers to get in, we put up some schemes the way जैसा इसने कहा कि we have to give some input, the वो output होगा, मतलब कस्टमर को आने का कोई ना कोई बहाना देना है. वैल्यू एडिशन हमें हमेशा उतनी ही रखनी चाहिए जितनी हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है, ऑपरेशन कॉस्ट और सारी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए. बट कहीं ना कहीं गिमिक गेम भी होता है. और मे बी अभी अब दिवाली सीजन है तो मान ले लकी लक्ष्मी है या वॉट एवर योर स्कीम कम्स अप टू, कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन कॉस्ट में एडेड रहेगी. बट यू कैन चार्ज द वे यू वांट. आपको जरूरत नहीं है कंपटीशन में आने की. आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है. आज की तारीख में कॉम्बिनेशन हो गया. इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट, इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस, योर स्कीम एंड योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन. आप अच्छी मेकिंग चार्जेस ले सकते हो. कहीं ना कहीं रिटेल बिजनेस में है, पूरा शहर अपनी अपनी दुकान सजा के बैठा है. कुछ गिमिक करें, कुछ स्कीम्स लाएं या व्हाटएवर, ईयर ऑन रेनी सीजन में रेनी सीजन की स्कीम लाएं, व्हाटएवर, लेकिन कुछ गिमिक करके अगर हम कस्टमर को अंदर ला सकते हैं तो फिर बाकी दुकानदार शॉपकीपर का काम है कि हाउ टू डू द बिजनेस. सो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक काफ़ी जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं उसमें लाइक कोई भी स्टोर नया कोई भी सिटी में खुलता है तो इतने ऑब्नॉक्शियस लाइक
मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, लाइक इट्स अनबिलीवेबल आप क्या बचा रहे हो. सो द थिंग दैट अविनाश अंकल सेड, आई वुड लाइक टू क्लब विद दैट. उसको मैच करने के लिए हम लोग भी कुछ क्रेजी कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट. इट्स लाइक अ रिएक्टिव थिंग. इट्स नॉट एक पागलपन से शुरू होता है, पूरी लाइन पागलपन की। So to add to both the people's comment, जिमिक्स के अंदर ये भी होता है कि 92 की लैंडिंग और 88 के रेट में बेच रहे हैं। हाँ अंदर आने के बाद तो अपने को उसको काटना ही है। ये हमने देखा है, गुजरात में हो रहा है ये। और बड़े चैंपियन दिमाग के लोग होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत either you match that or either you focus, like Ashish uncle also said that जो आपका higher gross margin और higher inventory turn वाला product है, उसको press करके how you can stand out is also a challenge which a lot of people don't really worry about, कि कोई calculate ही नहीं करता है, ठीक है इतना XYZ, but this is something that we can actually win in the rat race. So this is just what I wanted to club. Fantastic. Now I think we need to wrap up fast. So this is the last discussion. It's only for the younger generation guys. The senior guys को मैं नहीं पूछूंगा इसके लिए। क्या सवाल पूछूं? क्या लग रहा है? How do you feel when you are working with your dad and your granddad? And all together with you. No, I'll start with you, Neil. You are the youngest. Privileged. Obviously, I mean, we are so happy to be. You can speak the truth. Yeah, it's the truth. It's the truth. Because I will tell you one thing. My father never forced me to come and work in this business. He gave me that. You do what you want to do. That comes in your family, पहले से. So I mean, that was the privilege which I got, where maybe someone may not have got. So that is what I am very happy that my father treated me that way. And then at a point when I decided to come, he said, "Kab aa raha hai?" I was just lazing around. He said, "Kal se aao." I was just lazing around, and he said, "Now come on, start working." I was like, "Okay." So I will. And I said, "Papa, GIA karna hai. Kab admission le raha hai?" Then one day I just woke up and I went and I took admission and I started working on the courses which I need to do. Yeah, I did GIA. Then I did. यही किया. चलो, very good. I did GIA. Then there was another institute which was there. I did that, and then after I joined there, because we were talking about merchandising, and that is my very favorite subject, because I like a lot of data and all that. So I've done a course in merchandising also. So that helps me crunch क्या numbers. करते हो? डिजाइनिंग भी करते हो? डिजाइनिंग नहीं करता हूँ. हाँ, तो ऐसा घूमता नहीं है मेरा. So I just do merchandising. आप किस बिजनेस में हो? सर ज्वेलरी में हूँ, तो I can get it designed. I can't design. Okay. I can get it designed. Okay. So, भाई साहब, क्या कहते हो आप? What do you feel? So, it's actually when you work with your भाई साहब के साथ बैठ के काम करने में कितना मजा आता है? तो most of the time he is out, तो मेरे को काम अकेले ही करना पड़ता है। कितना एक सेंटेंस में कितना बोल लिया उन्होंने? नितिन भाई 103 साल एक सेंटेंस में ही हैज गिवन द होल थिंग। तो जाते कहाँ पर? इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। So I think so हम लोग ने जो डिफाइन किया हुआ है अपनी अपनी स्पेस ऑफ वर्क है कि मेरा काम क्या है, इनका काम क्या है. सो इट्स ऑलवेज गुड फॉर अस टू वर्क बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अपने को क्या करना है, सबका गोल एक ही है. तो स्पेस डिफाइन किया हुआ, तो इट्स वेरी गुड टू वर्क ऑन दैट. बट अगेन समटाइम्स इट हैपन्स कि यू डोंट ही डजंट हैज़ द टाइम टू गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका काम भी करना पड़ता है. तो दैट्स वेरी गुड पार्ट ऑफ इट कि दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से काम कर लेते हैं और काम हो जाता है. भाई साहब आप क्या कहते हैं? आई से वर्किंग इट्स 100% प्रिविलेज. कोई बंदा आपसे तो सब बड़े हैं ना? नहीं, मेरे से आपसे भी छोटे हैं. मेरे से छोटे भी हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स अ प्रिविलेज. किसी को 1 साल में समझ में आएगा, किसको 5 साल में समझ में आएगा. क्योंकि मैंने चाचा के नीचे काम किया, आशी भाई के नीचे काम किया. 1-2 बार अपने को लगता भी है कि यार अपन मतलब वाई एम नॉट बीइंग लिसन्ड, या बहुत बार ऐसे होता भी है. अभी मेरे नीचे 2 जन काम करते हैं.
बहुत बार उनके दिमाग में आता है अभिषेक भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग टू बी अ बॉस, या काइंड ऑफ ये मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, बट द कॉमन गोल एवरीबडी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट। और इट्स अ प्रिविलेज ये इसलिए क्योंकि हर एक के पास ये एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। आई डिस्कस विद अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे कि तेरे को अपने आप ही तेरे को गलती करने का अलाउड है, क्योंकि तेरे ऊपर इतने जन देखने वाले हैं, ये हर एक के पास प्रिविलेज नहीं है। एंड दिस इज व्हाट पीपल नॉट रियलाइज। Just to add on that, Yeah. how do you get in the family business? There is no exam to get in it. You're just selected. आप बोलेंगे पापा कल से आना वो है, चालू गाड़ी में जाएंगे। बस So वो मैनेजमेंट कोटा से आता है आप, वो बाकी चल रही है, बैठ जाते बाकी कौन सा नहीं है। So there is no exam. So that is why I said we are privileged. बाकी कौन सा भी आप कुछ भी कर लीजिए आप, there is an exam. डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा पर he has to be MBBS. वो करके आना पड़ता है। Here there is nothing like that. That is why. So मैं थोड़ी मेरी कहानी सुना देता हूँ। आई ज्वाइंट बिजनेस इन 1974। तो रोज आता था जाता था, 6 महीने हो गए, नाश्ता पानी चाय मज़ा देखो करो, एक चीज़ बेची नहीं थी, लेकिन सबसे कस्टमर से बात करता था ये सब। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को एक बार पूछा कि कैसा लग रहा है, तो ऐसे नहीं मैं जा रहा हूँ। तो उन्हें कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला ऐसा सवाल तो आज तक पूछा नहीं मेरे को, कैसा लग रहा है। मैं ग्रैंडफादर उससे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं गया, ये क्या किया। तो आई सेड कुछ गड़बड़ है। तो आई सैट डाउन। उसने बोला यहीं पर काम करने वाले और कहीं जाने का प्लान है। तो उसने बोला अभी तक तो कुछ प्रोडक्टिव देखा नहीं मैंने तेरे से, आई नेवर सॉ यू डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। तो आई सेड नो आई एम लर्निंग। तो बोला कितने साल तक तू सीखेगा, तू हाथ में अभी तक एक पकड़ भी नहीं पकड़ा है, एक हथियार हाथ में नहीं पकड़ा है, एक चेन कस्टमर को बेचा नहीं है, एक कुछ नहीं किया है, वहाँ बाजू में खड़ा रहता है फिर भी पेंसिल भी नहीं हाथ में लेता है। तो मैंने बोला नहीं कल से मैं देखो आई विल स्टार्ट। सो आई गॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड ही सेड क्या करो। बोला यू सेल दिस कान का ये इयरिंग्स डिपार्टमेंट में यू सिट हियर एंड यू सेल, वो बेचो तुम। तो धीरे धीरे 2 साल वापस निकल गए। तो बोलता है तेरा डेवलपमेंट क्या है। मैं बोला ये तो नेगेटिव बात करे, साला इतना काम मेहनत करता हूँ अभी, और ही इज़ नॉट इवन गिविंग मी एनी एनकरेजमेंट। तो ही सेट डाउन, ही सेट देखो मेरा ग्रैंडफादर भी काम करता था गोल्ड का, मैं भी गोल्ड का कर रहा हूँ, अभी डायमंड का करो ना तुम। तो आई सेड ओके क्या करूँ। बोलो जाओ मार्केट में धंधा करो कुछ, ऐसे पैसा लगेगा उसके लिए। हाँ तो है ना, मैं आई विल गिव यू। आई सेड ओके फाइन। कहाँ जाने का। बोला दर्जी स्ट्रीट, एक ही तो है और है कम, एक ही दर्जी स्ट्रीट है पूरा बाजार के अंदर जहाँ हीरे का काम होता था, पूरा मार्केट ही वहीं था। जो अपनी 100 मीटर का एरिया था, दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड आई स्पेंड अबाउट 3 months मीटिंग नॉन पीपल। बहुत लोग जानते थे मेरे को और बहुत लोगों को उन्होंने बोल दिया था ये आता है, वो 2-3 घंटे खड़ा रहता है शाम को, तो उसका देख लेना कोई उसका कोई करके नहीं जावे। तो आई spent time and all that, and I started buying. So I started buying diamonds. So I used to buy, tell my grandfather अब इसको पैसा दो, मैंने खरीदा ये खरीदा, and suddenly I saw कि ये माल बिक रहा है। So next 3-4 दिन में 10% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट फटाफट बिक जाता था। And the cycle started, and I started buying slowly bigger things and this, and फिर दुकान के अंदर ओल्ड ज्वेलरी बहुत आती थी, कस्टमर थी पुरानी, एंड डायमंड ज्वेलरी बहुत फैंटास्टिक आती थी। तो वो भी मैंने बाइंग करना शुरू कर दिया और फटाफट बिक भी जाता था। सो 1 साल ख़त्म हो गया उसमें, और 1 साल के बाद मेरे ग्रैंडफादर पूछ रहे पता है तूने क्या किया अभी। मैं बोला अभी कोई स्टोरी तो नहीं है ना इसके बाद। आपने बोला तो मैं वो भी जाके आया, क्या करूँ मैं, बंद करूँ कि नहीं जाऊँ, करूँ क्या मैं। बोला यू मेड दिस ईयर 6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया है तूने 1 साल का। यू नो
सो आई सेड व्हाट इज योर कंपनी प्रॉफिट? वो भी 6 लाख है. So I said, I am much better than you. But what he taught that what is the value for money, how to learn the product, and I did not go to any trainings institute, I did not go to anywhere. Then एक जो हीरा घसता है उसके पास मेरे को बिठा दिया. वो घसिया बहुत साल से आता था हमारे. बोला इसको रोज शाम को बुला, 1 घंटा बिठा, तू जो भी काम करता है. तो एवरी डे आई यूज टू कैरी बाय ओल्ड डायमंड्स और वो पॉलिश करके दे देता था. वो पॉलिश कर दूँ तो हीरा डबल के भाव बिक जाता सीधा. तो मैं बोला ये तो फैंटास्टिक है, किसी का अक्ल नहीं काम कर रहा है. सो हीरा को ओल्ड कट के हीरे को रीपॉलिश करो एंड यू यूज टू सेल एट अ वेरी हाई प्राइस. ओल्ड डायमंड्स यूज टू गेट अवेलेबल फॉर 30-40% लेस. तो ये दिस इज हाउ थिंग्स डेवलप. बट आप वो जमाने की बात अलग है, आज के ज़माने की बात अलग है. बट ये क्या हुआ, ये 2-3 साल जो गधा मजूरी की उसमें सीखने को बहुत मिल गया और समझने को मिल गया पूरा. Ashok bhai, this applies even today. Applies even today. Yeah. So I think it's great. फैमिली के अंदर एक जो रोल होता है सीनियर्स का, वो एक यूनिक रोल होता है. और वो बोल नहीं सकता है, वो कह नहीं सकता है, वो कमेंट पास करता है. कभी 1 वर्ड बोल देगा, कभी 2 वर्ड बोल देगा, लेकिन वो 2 वर्ड के अंदर 20 पन्ने की कहानी लिखी होती है. और अगर अपनी कैपेबिलिटी है उसको एब्जॉर्ब करके पकड़ लेने की और उसको प्रोसेस करके उसमें से कुछ वो तल में से तेल निकालने की, तो काम बहुत अच्छा हो जाता है. तो आई थिंक या एक जो आपने कहा उसका मतलब इन शॉर्ट में यंगस्टर्स दे हैव टू गेट देयर हैंड्स डर्टी, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो ही कर पाएंगे. आपके ग्रैंडफादर ने आपको वही बताया कि तुझा मेहनत कर, हाथ गंदा कर, उसके बगैर कुछ नहीं. एंड दैट एज स्टिल अप्लाइज. आई वाज सेइंग ये मेरे को क्यों कर रहा है? अरे आई एम बोर्न इन दिस फैमिली, सब चल रहा है, इधर बिक रहा है, मेरे से गधा मजूरी क्यों? बट पूरा लाइन करियर डेवलप हो गया. Yes. So that made the big. So that is still valid and. So I learned the hard way. Yes. And on this, Ashok bhai, major family businesses break, or they are holding out for a simple reason. जो आपके ग्रैंडफादर ने आपको सिखाया, वहाँ पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये लॉस करेगा या प्रॉफिट करेगा. वो जो एक लिवरेज देने की बात है, आज जब तक वो पानी में नहीं कूदेगा, जब तक तैरना नहीं सीखेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज एल्डर्स ऑल्सो. वी आर नॉट पासिंग ऑन द बेटॉन कि भैया तू जा, तू कर, तू सीखेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं पीछे खड़ा हूं, तेरे को आगे बढ़ाऊंगा. दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर सेटिंग अप ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट वे दे विल नेवर बी एबल टू ग्रो एंड देयर विल बी अ डिसकंटेंट ऑलवेज इन द फैमिली. सो दैट इज वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. टुडे आई सी Vedant and Sumit bhai, when they come for buying in my exhibition, Sumit is asking Vedant what to buy. That's the key. That is how they will be learning, and that is what is the hand holding. So what I feel is, if we all think about it as a unit, we will grow like anything. I think this is a fantastic session we've had today. We open up to questions. Please, अगर किसी के 2-3 मिनट, विजय जी बोलिए सर. क्वेश्चन नहीं है, बट आई थिंक इन आवर बिजनेस मैंने देखा है स्पेशल कुडोस टू द एल्डर्स. उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एनकरेज किया है और उनको सिखाया कि ये लाइन अच्छी है. बिकॉज अभी इस टाइम में ये बहुत देखते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है कि तू ये लाइन ट्राई कर ले, तू वो लाइन ट्राई कर ले, या वी सी अ लॉट ऑफ अस क्रिबिंग अबाउट कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है. So I give special kudos to the elders of the family कि they are encouraging and teaching their next generation. Then this is a beautiful business. Come join us. Absolutely right. Big You are credit to all absolutely of us. right. वो क्यों है मालूम है कि when the youngsters see that their seniors are happy doing what they are doing and they are content. क्योंकि अगर if we keep cribbing with our youngsters, अरे धंधा खराब है, मैं मर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ पैसा नहीं है, so why will they join you?
If they see you happy, doing good, then they will join you. So it is our responsibility to project the right kind of image to the next generation about our business. बोलिए सर. सर मैं एक छोटे रिटेल शॉप को बिलोंग करता हूँ यहीं मुंबई में. थोड़ा जोर से. यहीं मुंबई में, और 25-30 साल से हमारा शॉप है, चल रहा है. तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने और डैड ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया बिज़नेस के ग्रोथ के बारे में. तो हमने ये रियलाइज़ किया है कि जैसे कि अभी जैसे आज इस लेवल पे गोल्ड की वैल्यू निकल गई है कि मान लो कि एक 5 किलो का स्टॉक है दुकान में, आज 5 CR की वैल्यू हो जाती है उसकी. ओके, अब मार्जिन भी 10% रहे नहीं है गोल्ड ज्वेलरी में, अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा से ज़्यादा 5% पे आ गया है. आप एग्री करेंगे मेरे ख्याल से प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में. तो इस केस में हमने ये पता किया है कि भाई जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका 1% यानी कि 5 लाख का सेल होना ज़रूरी है. क्या आप ये एग्री कर पाएंगे? यानी कि 3 टाइम्स ऑफ द कैपिटल इन्वॉल्व सेल तो होना चाहिए, और उसका पर डे का कैलकुलेशन जो है 5 लाख का आता है. अगर मिनिमम 5 करोड़ की हम जो कैपिटल अपन गिनते हैं 5 किलो पे एग्जैक्टली, तो हमने ये डिराइव किया है. तो अब डेली का 5 लाख का सेल एक छोटे ज्वेलर के लिए अभी इम्पॉसिबल हो रहा है. यानी कि पहले भी नहीं होता था, वो तो ठीक है हम सर्वाइव कर गए क्योंकि गोल्ड ने ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन दिया है, तो हम सर्वाइव कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, खर्चा निकल रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है. तो अब आज की कंडीशन में अगर हम डेली का 5 लाख का सेल नहीं कर पा रहे, मान लो 1 लाख का किया, तो उसको दूसरे दिन पे मेरे को 10 लाख का सेल करना ज़रूरी है. यानी कि महीने का 1.5 करोड़ का सेल होना ज़रूरी है. कैपिटल अगर 5 करोड़ की है, ये मैंने डिराइव किया है. अगर आप भी इसे एग्री करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो क्यों नहीं है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो. तो अभी इस कंडीशन में हमारा बिजनेस अगर जिस तेज़ी से भाव बढ़ा, अगर उसी तेज़ी से अगर मान लो 10% भी अगर भाव डाउन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 50% छोटे रिटेल ज्वेलर्स तो शट डाउन हो जाने वाले, क्योंकि उनको खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे. तो इस केस में मतलब क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए कि बिजनेस को लेके आप कुछ इंसाइट्स दे सकते हो? आशीष भाई कुछ आप एडवाइस दे सकेंगे इन अ वेरी शॉर्ट. बहुत सारे क्वेश्चन थे. बहुत सारे क्वेश्चन है, इनके लिए तो कम से कम आधा दिन आपको मतलब जो पहले का आपका क्वेश्चन में भी एक मेरा जवाब देना रह गया था कि बहुत बारी लोग जो साल के आखिर में प्रॉफिट निकालते हैं उसमें प्राइस राइस का शेयर कितना है प्रॉफिट में, और एक्चुअली ऑपरेशंस में ट्रांजैक्शन करके अब नफ़ा कितना मिला, वो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपको समझो पता चलेगा कि मैं नेट प्रॉफिट मेरा 5% बचता है या जो भी बचता है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका स्टॉक टर्न आना चाहिए. आपका खर्चा तो जैसे अविनाश भाई ने कहा ऑपरेशन कितना खर्चा आता है, समझो 3 बार आपने स्टॉक टर्न किया तो 15 करोड़ का सेल हो गया, उसमें आप कहते हैं 5-7% आपको मिलता है. तो जो भी 40 या 50-60 लाख रुपए मिलता है और आपका खर्चा कितना होता है उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. और हर बार वो डेली बेसिस पे वो ट्रांसलेट नहीं होता है, क्योंकि आप वीकली बेसिस पे देखो, क्योंकि आजकल वीकेंड बिजनेस बढ़ जाता है या सीजनल बिजनेस होता है, तो सिर्फ पर डे पे देख के आप टेंशन में मत आ जाइए. So you look at weekly breaks और monthly breaks क्या आता है, and that is the best. I think 3 stock turn जो आप बोलते हैं 5 करोड़ का माल है तो 15 करोड़ का अगर आप सेल कर सकते हो तो that is a good for plain gold definitely. पॉसिबल नहीं हो पा रहा, हो नहीं पा रहा. बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी यही कहना है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ हो पा रहा है. उसके लिए प्लेन में 1-1.5 में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे डेफिनेटली. तो उसके लिए आपको मतलब पहले क्या था, सोने का दुकान आप डालो तो कस्टमर आते थे, अभी हमें कस्टमर के पास जाना पड़ रहा है. बड़े से बड़ा ज्वेलर ले लो या छोटे से छोटा ज्वेलर ले लो, हमको दुकान से बाहर निकल के कस्टमर ढूंढना पड़ रहा है. वो सबको है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा आज का इंडिया का. 10% अगर मार्जिन है तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर मार्जिन 5% है तो मुझे डेली 10 लाख का सेल करना भी जरूरी है सिर्फ एक छोटे रिटेलर के लिए. यस, उसमें आप दूसरी तरह से देख सकते हैं कि आपका इन्वेंट्री अगर रैशनलाइज करते हो आप 5 करोड़ की जगह 3.5 करोड़ में 3-700 में अगर आपका काम हो जाता है तो इन दैट केस वो सिर्फ सेल बढ़ाना भी नहीं, क्योंकि एक लिमिट होता है एक एरिया का शॉप का, तो उसके ऊपर जाने के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा
और दूसरा इन्वेंटरी रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे हमने बात का जो माल बिक रहा है उस पर फोकस कीजिए, और जो बड़े ज्वेलर्स नहीं दे पाते हैं वो आप देने की कोशिश कीजिए, तो वो कस्टमर आपके पास आएगा। ये मेरा प्लेन सिंपल। सर ऑल्सो मे बी यू कैन थिंक अबाउट अदर रेवेन्यूज जो स्लाइटली हायर प्रॉफिटेबल हो, मे बी सिल्वर एग्जाम्पल, और मे बी ई कॉमर्स विच हैज लोअर ओवरहेड्स, बट आपको बिना कुछ मतलब इतना एक्सेसिव रेकरिंग आपकी जो कॉस्ट है वो बचा कर भी आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। सर इस पे एक मेरा सजेशन रहेगा, जैसे अभी आशीष भाई ने बताया आपको कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपने पीछे आपने 5 किलो की इन्वेंट्री जैसे चलता था उस तरह से बना के रखी है। आज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की ज्वेलरी की सेल्स आपके पास आ रही है, और उसके हिसाब से आपको अपनी इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। तब जाकर के आपकी सेल्स बढ़ेगी और तब जाकर के आपके टर्न्स भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। अदरवाइज आप जब अगर से वही तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करोगे और आप बोलोगे कि मेरे पास सेल्स नहीं आ रही है, तो देन इट विल बी अ चैलेंज। हमारे एरिया में लाइन से 100-150 दुकानें हैं, एक किलोमीटर के एरिया में 150 दुकानें हैं। We are short of time. We have to wind up. जीतू भाई कोई खास क्वेश्चन છે તમારો? ये लो। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक सुझाव है। ऐसे सेमिनार में व्यापार करना, व्यापार बढ़ाना, पैसा कमाना, उसी बात पे तो जोर देना ही चाहिए। साथ साथ एथिकल बिजनेस, उसके ऊपर भी यंग जनरेशन को इंस्पायर करना पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ सब जो बैठे हैं वो 25, 30, 40, 50 साल की पीढ़ी लेके बैठे हैं। वो नई जनरेशन आ रही है, तो उसको सबसे पहले ऐसा बोलना है कि आपको पीढ़ी का नाम बड़ा करना है। अगर वो लाइन पकड़ेंगे तो हमारा धंधा बहुत रिस्की है, फिसल जाने की बहुत गुंजाइश है, वो फिसलेगा नहीं। धन्यवाद। जीतू भाई, वो हम कितना भी बोलेंगे ना, तो बच्चे लोग सीनियर लोगों का बर्ताव देख के अपने आप सीख जाते हैं। सो वी हैव टू बी एथिकल। बच्चे अपने आप सीख के एथिकल चलेंगे। All right, thank you so much. Zordar Talia, ladies and gentlemen. What a wonderful session. The transformation of family jewelry businesses. A small token of appreciation and respect to everybody, to all the panelists, from Ashok Meenawala sir. Amazing. Let's have a group photograph, sir, with everyone. Superb. Yes. Thank you. A huge thanks to Avinash sir, Ashish sir, Sumit sir, Vedant sir, Ashish Kothari sir and Abhishek Kothari sir. Thank you. Thank you so much Ashok Meenawala sir for a great session and being the great moderator like always. Thank you, ladies and gentlemen. Let's meet around 3 o'clock for the next set, for the next session. Thank you.